Welcome in today's video. In today's video, we are going to learn about the some important carbon compound, especially ethanol and the ethanol, and ethanoic acid. Second one is the ethanoic acid, right? So these are the two commercially important carbon compound, right? इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड, ये दो कमर्शियली इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, बराबर है। तो इनके बारे में हमें आज के वीडियो में स्टडी करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद इथेनोइक एसिड के बारे में बात करेंगे, राइट। सो दिस इथेनॉल इज अ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड बिकॉज इट इज़ वाइडली यूज एज इन अ कमर्शियल लेवल, राइट। तो एक्चुअली इथेनॉल इट्स formula, it is CH3 then CH2OH. Okay, this is the molecular formula of the ethanol, right? OH is the functional group of alcohol that it contains. So before we are going to start the chemical properties of this ethanol, we must have to know some important properties of the ethanol that we discuss one by one. I have write on the board the important properties of the ethanol. Okay, so first of all, ethanol is soluble in water. Ethanol is soluble in water in any proportion. ये जो ethanol है ये water में solution है, मतलब soluble है किसी भी proportion में. It is soluble in any proportion in water, right? This is the first property of the ethanol. Second one is the at room temperature. It is colorless liquid. Ethanol is a colorless and it is in a liquid form at the room temperature. Room temperature पे ये liquid state में रहता है, एक्चुअली कलरलेस लिक्विड है ना, ये कलर नहीं है। उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्कोहल और अ स्पिरिट। आपने नाम सुना है, इथेनॉल को अल्कोहल या स्पिरिट भी बोला जाता है, विच इज़ यूज फॉर द, है ना, लैब में भी हम यूज़ करते हैं स्पिरिट। ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी इथेनॉल की। Then whenever we are going to taste the ethanol with a litmus paper, है ना, either blue or red litmus paper, so both the taste will be found to be neutral. There will be no change shown by the both litmus paper. So it is in a neutral nature. तो ethanol का जो nature है वो कौन सा है, न्यूट्रल है। It is neither acidic nor basic. It is neutral in nature. How we know its nature is neutral? By tasting it with a litmus paper, है ना। तो वहाँ से ऐसे पता चलता है कि ये it is a neutral, ethanol is a neutral substance. Then the consumption of the ethanol is harmful, which may lethal. ethanol का consumption harmful है, right? Means whenever it is widely used in the society, so it may spoil some families like that. It is adversely affect how it is harmful. It is adversely affect the physiological processes and the central nervous system, CNS. Actually excessive intake of ethanol या ethanol का या ज़्यादा इनटेक हो गया तो ये एडवर्सली अफेक्ट करता है बेटा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जितने भी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होते हैं, उन सभी को ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। और स्पेशली जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको भी ये बैडली एडवर्सली क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है। कौन? इथेनॉल। ओके, देन प्योर इथेनॉल, दैट इज प्योर इथेनॉल, उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। तो प्योर इथेनॉल आप स्मॉल क्वांटिटी में भी उसका इंटेक करते हो तो इट बिकम लीथल, है ना। इट इज़ एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग एंड विच मे कॉज इट इज़ अ lethal. Okay, so pure ethanol, if its intake is in a very small quantity, so it is become lethal, that is the absolute alcohol, है ना। प्योर इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। देन इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट, बराबर है, एक अच्छा सॉल्वेंट है।
ethanol being a good solvent. Okay, so it is used in the medicines, है ना. ethanol का use medicine में भी, as it is a good solvent, so it is used in a medicine such as like a tincture iodine, है ना. कहाँ पे यूज़ किया जाता है? tincture iodine. कल tincture iodine के साथ हमने टेस्ट की थी. ओके, तो tincture iodine इज अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड द आयोडीन. किसका मिक्सचर है ये? इथेनॉल और आयोडीन का मिक्सचर, बराबर है. कौन सा? टिंचर आयोडीन. ओके, यहाँ पे यूज़ किया जाता है इथेनॉल. उसके बाद कफ मिक्सचर, यू नो कफ, राइट. कफ मिक्सचर मतलब जो भी कफ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन या जो भी सिरप्स बनते हैं उसमें भी इथेनॉल का प्रोपोर्शन रहता है. आप देख लो जो कफ्स की वगैरह जो बॉटल रहती है उसमें है ना कंटेंट में इथेनॉल दिखेगा कितने प्रोपोर्शन में है ना. और मेनी टॉनिक्स है ना, इट इज़ आल्सो टॉनिक्स में भी इथेनॉल का प्रोपोर्शन है. मतलब इथेनॉल यूज़ मतलब ये यूज़फुल भी है एज अ मेडिसिन करके. ओके, दीज आर द वेरी कॉमन प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द इथेनॉल. अब ये प्रॉपर्टीज़ इथेनॉल में है, ओके, इसलिए इथेनॉल वाइडली यूज़ किया जाता है. मतलब कमर्शियल यूज़ है कि नहीं, इथेनॉल का कमर्शियल यूज़ है. तो अभी हम देखेंगे कि इथेनॉल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. ओके, तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इथेनॉल. ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो और इन द प्रीवियस क्लास we deals with the oxidation reaction of the इथेनॉल, है ना. इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमने इसके पहले देखा था. वो रिएक्शन देखो कैसी थी, यू नो वेरी वेल. CH3 CH2 OH. ओके, तो ये इथेनॉल हो गया. और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखी थी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4. KMnO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके यूज़ हुआ था वहाँ पे. और एक क्या फॉर्म हुआ था? एसिड फॉर्म हुआ था. व्हाट इज फॉर्म? what acid dash COOH, right. Which acid is formed? Yes, it is acetic acid. कौन सा एसिड फॉर्म हुआ था यहाँ पे? what? It is the acetic acid. ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ था इथेनॉल. इथेनॉल का फार्मूला CH3 CH2, राइट, OH. और वहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ था. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखी थी कहाँ पे? प्रीवियस वीडियो में देखी थी. मतलब इथेनॉल के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, तो अभी हमें रिसेंटली ये एसिटिक एसिड, यू नो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड. ओके, अब यहाँ पे हमें आज दूसरी जो रिएक्शन देखनी है इथेनॉल की जो है वो है रिएक्शन विद द सोडियम. सेकंड रिएक्शन वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज़ द रिएक्शन विद सोडियम. सोडियम के साथ रिएक्शन स्टडी करना है, राइट. ओके, तो सोडियम के साथ रिएक्शन देखो, मीन्स इथिल अल्कोहल दैट इज CH3 CH2 OH is react with the sodium. Okay, and which compound is formed? The compound is formed CH3 CH2 ONA plus हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. विच गैस इज रिलीज हियर? CH3 CH2 OH, दैट इज द फार्मूला ऑफ इथेनॉल और द इथिल अल्कोहल इज व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम. किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम? सोडियम के साथ रिएक्शन देख रहे हैं. और ये यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसको हम सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, है ना. सोडियम इथॉक्साइड, इट्स कॉमन नेम इज सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम इथॉक्साइड. ओके, और हाइड्रोजन गैस, विच गैस इज रिलीज हियर? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हुआ और कौन सी गैस रिलीज हुई है बेटा यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन? ओके, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे 2 लिखने से ये पूरा प्रोडक्ट 2 हो गया और ये सोडियम को 2. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस. ओके, तो ये बेटा इथेनॉल इज रिएक्ट विद द सोडियम. ओके, देन व्हाट विल फॉर्म? सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ. और विच गैस इज रिलीज? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस. अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी है, तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअली इसकी एक एक्टिविटी भी आपकी इसमें किताब में दी है. तो एक्टिविटी में क्या किया है हमने कि एक टेस्ट ट्यूब ली है, बराबर है कि नहीं. तो टेस्ट ट्यूब में नियर अबाउट 10 ml आपको क्या लेना है? इथेनॉल लेना है ना. क्या लेना है? यू शुड टेक द 10 ml इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब. और उसके बाद जो सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल के कुछ पीसेस, ग्रेन्स जैसे उसके 1-2 पीसेस करना है.
और वो इसमें क्या डालना है तुम्हें, इस टेस्ट ट्यूब में डालना है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था बेटा, इथेनॉल लिया था। ओके, अब नाउ जैसे ही आपने सोडियम इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, वैसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही एक डिलीवरी ट्यूब वहाँ पे अटैच, एक है ना, स्टॉप पर अटैच करना है और उसमें एक डिलीवरी ट्यूब क्या करना है, ऐसे अटैच करना है। दिस इज द डिलीवरी ट्यूब। ओके, तो ये सोडियम और, है ना, सोडियम और इथेनॉल के बीच में क्या होंगी बेटा, रिएक्शन होगी, और ये जो सोडियम के पीसेस हमने इसमें डाले थे, दे आर डांसिंग इन दैट लिक्विड एंड वन गैस इज रिलीज, एक गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, जो गैस रिलीज होगी, जैसे रिएक्शन में देखिए हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इस डिलीवरी ट्यूब से क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। नाउ टेक अ बर्निंग कैंडल, एक आपको क्या करना है, बर्निंग कैंडल लेना है और ये यहाँ पे माउथ ऑफ दिस डिलीवरी ट्यूब के पास आपको ये बर्निंग कैंडल रखना है। तो क्या होगा, तो वो बर्निंग कैंडल शुरू में बर्न, है ना, जो बर्न होगा और एक पॉपिंग साउंड क्रिएट होगा। विच साउंड इज प्रोड्यूस, पॉपिंग साउंड, मतलब जो गैस यहाँ से डिलीवर हो रही है, दैट गैस इज अ कंबस्टिबल गैस, है ना। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, इनके बीच में रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखिए, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड दैट हाइड्रोजन गैस इज combustible gas. How we came to know that it is the combustible gas? So whenever we put the candle in front of this mouth of the delivery tube, we hear the popping sound. So it is clear from that activity that hydrogen gas is a combustible gas. So this is about the reaction of the sodium with ethanol. Okay, now okay, तो अभी हमने जो एक्टिविटी स्टडी की है, बराबर है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे बेटा कुछ क्वेश्चन है आपकी किताब में, देखो पेज नंबर 127 पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द कंबस्टिबल गैस कमिंग आउट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब। तो कौन सी कंबस्टिबल गैस उस गैस डिलीवरी ट्यूब से बाहर रही है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस आई थी, हाइड्रोजन गैस। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू द सोडियम पीसेस अपीयर टू डांस ऑन द सरफेस ऑफ द इथेनॉल। तो वो टेस्ट ट्यूब में जो इथेनॉल था, बराबर है कि नहीं, तो ये इथेनॉल के सरफेस पे ये जो जो पीसेस है सोडियम के, वो क्यों मतलब डांस कर रहे थे, मतलब दे आर लाइक अ डांसिंग। सो एक्चुअली द रिएक्शन इज हाईली रिएक्टिव, यू नो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, तो दिस सोडियम इज रिएक्ट विद द इथेनॉल एंड द bubbles of the hydrogen gas will be formed and it is the gas is formed in the upward displacement, है ना, गैस कैसे आ रही थी, ऊपर। So that's why because of that effervescence of the gas and the reaction of the sodium metal, they are looking like a dancing, right? Then the second question या third यहाँ पे दी कि repeat this procedure using magnesium ribbon instead of sodium। अब यहाँ पे हमने ये जो एक्टिविटी की किसके साथ की थी, सोडियम के साथ की थी। तो ये सेम एक्टिविटी आपको किसके साथ करनी है बेटा, मैग्नीशियम मेटल के साथ करनी है। मतलब सेम टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेना है और वो मैग्नीशियम उसमें डालना है। तो उस पर भी क्वेश्चन है कि डू यू सी द गैस बबल रिलीजिंग फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन। यस, डेफिनेटली मैग्नीशियम रिबन से भी गैस बबल्स क्या होंगे बेटा, रिलीज होंगी। ओके, सो does the magnesium metal react with the ethanol? Definitely magnesium metal react with the ethanol. So how the reaction has been takes place. Okay, so the same reaction will be takes place as like a sodium whenever we use the magnesium instead of the sodium. Okay, so this is about the activity. Okay, now we are going to learn the third property of the third chemical property of the ethanol, that is dehydration reaction. Okay, क्या नाम है उसका बेटा, डिहाइड्रेशन। नाम से ही पता चलता है एक्चुअली क्या होता होगा रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन होता है कि नहीं, what है ना, lot of water, if lot of water is released from our body then we may say that तो dehydration is there। मतलब उस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल है ना, H2O वाटर क्या होना, रिलीज होना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो किसका देखना है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। उसके लिए यहाँ पे इथेनॉल का फार्मूला हो गया CH2 CH3 CH2OH। अब ये डिहाइड्रेशन कैसे होता है कि डिहाइड्रेशन whenever we are going to heat the इथेनॉल को क्या करना पड़ेगा बेटा, हीट करना पड़ेगा at 170 डिग्री सेल्सियस in the excessive presence of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक्सेसिव सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम इथेनॉल को
कितने डिग्री पे हीट करेंगे? 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे। तो यहाँ ये जो इथेनॉल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, इसे बाहर निकलता है, बराबर कि डिहाइड्रेशन है ना, और क्या फॉर्म होता है? इथीन फॉर्म होता है, इथीन, राइट, इथीन इज फॉर्म, राइट, इथीन विच इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन इसको, दिस इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या हुआ इस केस में, क्यों इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं बेटा? क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो इथेनॉल में से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है, बराबर है। और कैसे होता है? व्हेन इट इज हैपन, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हीट द इथेनॉल एट 170 डिग्री सेल्सियस इन द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ व्हाट? H2SO4, that is the hydrochloric acid, बराबर है। तो here this hydrochloric acid is act as a dehydrating agent। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करके एक्ट हो रहा है? यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके क्या हो रहा है बेटा? एक्ट हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो ये जो नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके क्या हो रहा है बेटा? एक्ट हो रहा है। तो ये जो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल, बराबर है। तो पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की स्टडी की थी, ऑक्सीडेशन जैसे है ना, ऑक्सीडेशन होता है, बराबर। ऑक्सीडेशन इथेनॉल की प्रॉपर्टी है जहाँ पे पोटेशियम परमैग्नेट है ना, अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो वहाँ पे एक एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। दूसरी रिएक्शन सोडियम के साथ ली थी, है कि नहीं? सोडियम के साथ जो रिएक्शन हुई थी कैसे की थी हमने? सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन हो गई थी, राइट, सोडियम प्लस CH3 CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, OH, ओके। तो ये बेटा सोडियम किसके साथ? इसके साथ रिएक्ट हो गया, ओके। तो क्या फॉर्म हुआ था? सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हुआ था यहाँ पे, है ना, CH2 CH3O Na प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी भी हमने स्टडी की है, राइट। दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? सोडियम इथॉक्साइड। इट्स नेम इज सोडियम इथॉक्साइड, ओके। और ये इथेनॉल, बराबर है, और ये सोडियम मेटल, ये क्या हुआ? सोडियम मेटल। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो बेटा ये हमने आज के जो पार्ट में है, हमने इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड स्टडी करना था। तो 2 इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, एक इथेनॉल है तो दूसरा इथेनोइक एसिड है, बराबर है। उसमें से हमने आज इथेनॉल, ये जो कार्बन कंपाउंड है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या की है बेटा? स्टडी की है। स्पेशली इथेनॉल ऑक्सीडेशन है ना, वो भी हमने रिएक्शन शुरू में देखी है। उसके बाद हमने ये सोडियम के साथ इथेनॉल की रिएक्शन देखी है। उसके बाद ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली इथेनॉल क्या करते बेटा? पजेस करते, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इथेनॉल।